Hello friends, this is Deepak Mishra and I welcome you to my show Zindagi Mixara with Deepak, a brand new show where I'll be talking about people across all walks of life, about how did they overcome their challenges and grew up again. Some successful, some maybe not so successful, but definitely a winner in themselves. So आज के शो की शुरुआत करते हैं. Today I have a very special guest from along with me, a very good friend of mine, Mr. Rishikesh Kumar. By the way, he is a civil engineer by his profession and one of my very close friend and an aspiring entrepreneur. So let me welcome Mr. Rishikesh Kumar. So Mr. Rishikesh Kumar is here with me. Please switch on your camera, man. So hi Rishi, how are you? Hello, Mr. Deepak Mishra. Hi Rishi, how are Yeah, you? I'm absolutely fine. How are you? I'm absolutely delighted to have you on my Yeah, show. it's So, it's a good to see you again oh, after a long time. इट्स सच में बहुत लंबा अरसा हो गया हम लोगों को मिले हुए. खैर हाँ यार, पिछली सीरियसली. पिछली बार जब मिले तब से अब तक काफी कुछ बदल चुका है नहीं. बिल्कुल सच में आपके बाल छोटे हो गए. आपकी दाढ़ी बड़ी हो गई. खैर एनी हाउ, जैसा कि आज हम लोग को पता है, हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड दैट इज Yes, definitely. व्हाट नॉट टू डू एट योर स्टार्टअप. करेक्ट. सो Yes. इससे पहले हम इस शो की शुरुआत करें. मैं इस शो की शुरुआत एक कोट के साथ करना चाहता हूँ. समहाउ मैं कहीं पढ़ रहा था कि आदमी बड़ा हो या छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए. एग्जैक्टली ये आपने जहाँ भी पढ़ा है ये बहुत अच्छी बात पढ़ी है. बिकॉज सी क्या होता है, आदमी कुछ भी करे ना करे बट उसके पीछे की जो स्टोरी होती है ना, एवरी पर्सन की जो स्टोरी होती है पीछे की, वो एक बड़ी स्टोरी होती है जो सिर्फ वही इंसान जान सकता है जिसने उस चीज को, उन बातों को, उन सिचुएशन को फेस करा हो. और उनसे बढ़िया स्टोरी उनके पीछे की कोई नहीं जान सकता. ओके. सो चलिए शुरू करते हैं. ऋषिकेश, आई वुड love to introduce yourself to all of my guests. All yours. Yes, as you already introduced me, that my name is Rishikesh Srivastav, and I'm a civil engineer as well as entrepreneur. And I had started my schooling from my native village, Barsandi Dara, Samastipur. Hmm. Okay, and Hmm. after that, what happened the next after completing 10th in Hmm. our family? You can see, बेटा 10th कर लो उसके बाद तो मजे हैं, बेटा 12th कर लो फिर मजे हैं. The So we biggest have scams of our life. yes, you can say that. Then after I went to the college, 12th, okay, everything is good. Now there is no pressure. Wow, it's good. But all people are saying that okay बेटा 12th कर लो, ये करियर का बहुत बड़ा पॉइंट है, इसके बाद करियर चेंज हो जाता है and lots of things. Okay, it's maybe 12th का एग्जाम भी हुआ मेरा, अच्छी रिजल्ट भी आई, थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा था. और फिर मैंने WBJE का फॉर्म फिलअप किया एंड आफ्टर दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज पूरा की. और फिर उसके बाद काउंसलिंग के लिए गया. देन यू नो व्हाट हैपेंड दैट डे. हाँ. ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग I had never thought that I will choose the civil engineering. You Absolutely. know, हाँ. I had in the mind that I will choose either mechanical or either computer science. Okay. Okay, Okay. because at that time, at that of my age, Hmm. I even I don't know what to do, what we should do to for the better career. But कहीं ना कहीं था, मैंने बहुत जगह सुनी थी. और you know, from Three Idiots, I was very inspired. Like, Uh, okay, okay. we will choose mechanical, I would, I would, mechanical engineer. I would like to quote a statement by a very famous person. I would not like to quote his name here. Uh, उन्होंने बोला कि why I chose he was a computer engineer and he simply told कि मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्यों चूज किया. मैं सोच के आया था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लूंगा. मैं सोच के आया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स लूंगा. भैया काउंसलिंग के लिए पहुंचे, आगे वाला क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा बूम, सॉरी कंप्यूटर, कंप्यूटर का बहुत बूम है. पीछे वाला क्या करेगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग.
काउंसलिंग के लिए मेरा नंबर आया, क्या करोगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सोच के क्या आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स, इवेंचुअली क्या बना, कंप्यूटर इंजीनियर। अब मेरा 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 करियर किसने डिसाइड किया, उस आगे वाले बंदे ने जिससे मैं आज तक नहीं मिला, वो पीछे वाले बंदे में जिससे मैं जिंदगी में नहीं मिलूंगा, बट आई गॉट दैट, सो दैट्स पार्ट ऑफ इट, वी ऑल गो थ्रू दैट। ओके, Yes. यस, Okay, let me continue from that. Let me finish that part. या ऑफ कोर्स, ऑफ That कोर्स, was very interesting, you know. So on the day of counseling, I was with my father and with my big brother. Then I got a call from my uncle that no, I got a call from my uncle to my dad, not directly to me, and he told my dad to उसको बोलिए सिविल इंजीनियरिंग ले ले। अब मुझे पता नहीं था सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं पता सिविल इंजीनियरिंग होता क्या है, उसमें करते क्या है। मैकेनिकल का पता है, जितनी मशीनरीज है, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सब आएंगे। कंप्यूटर साइंस का पता है, इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग, इच एंड एवरीथिंग सब कुछ आएगा। मुझे सिविल इंजीनियरिंग का कुछ नहीं पता। अब चलो ठीक है, फिर मैंने ले लिया एडमिशन। यू नो द सिचुएशन ऑफ कॉलेज right now, I will not disclose the college name. anyhow, But yes, right yes. now, college is completely shut down, completely closed. Okay. I am literally, you can say that I am graduated from that college that has no any history right now. Okay, okay, so So okay, let it be. I just but when I went to the college and I started my study and I just observing everything, then I thought that I'm really in the so let's move forward, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस इंटरव्यू को। बिल्कुल As I can see with the discussion and everything all, having a good amount of experience, आप करियर के बूम पे थे और आपने लगभग एक स्टार्टअप शुरू किया, एंड मतलब आपने एक स्टार्टअप शुरू किया, तो थोड़ा आपको पहले उसके बारे में बताइए कि आपका क्या स्टार्टअप था, किस तरीके का था, क्या ऑर्गेनाइजेशन था, क्या आप इट सिंगल हैंडेडली कर रहे थे और यू हैड सम पार्टनर्स, और व्हाट अबाउट इन ब्रीफ, जस्ट इन ब्रीफ। Yes, at that time I was on the very top of my career. Okay, everything was very good. थोड़ा हिंदी में रखते हैं, थोड़ा हिंदी में रखते हैं ताकि क्लैरिटी ज़्यादा ऑडियंस हाँ जाए हमारा। हाँ, मिक्स सॉर्ट ऑफ। हाँ, यस। तो क्या हुआ उस समय, ऑब्वियसली मेरा करियर बहुत ही अच्छा जा रहा था, बहुत ही अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। देन सडनली आई गॉट सम पार्टनर्स एंड वी हैड डिसाइडेड दैट वी विल स्टार्ट आवर स्टार्टअप। what kind of startup? There was a just like a construction company. Okay, you can say that construction. What sort of? Civil construction company. Actually, we all partners was the civil engineers. Okay. So we decided to start a civil engineering because हम लोगों के पास knowledge थी, सब कुछ था। तो Okay. हमने start करा। Okay, तो आपका मैं जो बेसिकली मतलब आप कहना चाहते हैं कि मतलब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया वेयर यू हैड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि शायद आपके जैसे थे और आपने उस सोच के आगे बढ़ा। ओके, तो जस्ट जैसा अभी आपने भी मुझे कहा कि यू वर एट अ गुड स्टेज इन अ करियर, आपका एक अच्छा लेवल रीच हो रहा था और कहीं ना कहीं इट वाज ऑन एन अपवर्ड राइजिंग कर्व, ठीक है। तो उस एक फुल फ्लेजेड ब्लॉसमिंग करियर के बीच में स्टार्टअप करने का आइडिया कहाँ से आया, या क्यों सोचा कि नहीं यार मुझे स्टार्टअप ही शुरू करना है, जॉब में अच्छा कर रहे थे, मुझे स्टार्टअप ही करना है, क्यों? बिकॉज जो मैं कर रहा था कहीं ना कहीं मैं दूसरे के लिए कर रहा था। ओके, ठीक है, दूसरे के लिए कर रहा था, उसमें मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही कि मैं दूसरे के लिए जो भी सिविल इंजीनियरिंग की जॉब है वो मैं कर रहा हूँ। तो व्हाई नॉट फॉर मी? ओके, मैं अपने लिए क्यों ना करूँ? उस जो काम मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ वो काम मैं अपने लिए करूँ तो कितना बेहतर। ओके, थोड़ा अब मुझे पता है कि आपका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन बिजनेस था, तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस मीन्स नंबर्स, मीन्स मैन पावर, मीन्स इंसान, आदमी, मैं और आप और हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग। तो आपका बेसिकली बिजनेस मॉडल क्या था, या आप बेसिकली क्या कर रहे थे?
were you more into material supplies, or were you into uh, actually आपके manpower, you had manpowers and working with them? यस, मेरे पास बहुत अच्छी Hmm. Hey, wait, I'm not here. I'm not able to hear you. Please, please, please. I'm. Hello. am I able? Yeah, okay. So my question is, uh, what was your business model? Like in construction, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, like you were in the metal suppliers as a supplier, or were you actually involved with the manpower? Did you have manpower or something like this, or what? Or what? यस, जो मेरा बिजनेस मॉडल था वो था जस्ट इन अ स्टार्टिंग Okay. एज ए स्टार्टअप, हाँ. वी विल जस्ट हम लोग अपना एक टीम बनाएंगे हाँ. लेबर के साथ, और हाँ. उनको लेके हम लोग काम करेंगे, ये Okay. हमारा बिजनेस हाँ. मॉडल, ठीक है? Okay. बिकॉज हाँ. फॉर द अनदर बिजनेस मॉडल इन सिविल, हाँ. वी विल नीड लॉट्स ऑफ मनी Hmm. फॉर इन्वेस्टमेंट, Hmm. बट यहाँ पर वैसा इन्वेस्टमेंट नहीं था, बट वी कैन से दैट हम लोगों के पास अराउंड 300-400 लेबर की टीम थी, Okay. और हम लोगों ने स्टार्ट किया। ओके. जस्ट मेरा सवाल है अभी यहाँ पे, लाइक वी आर इन, ओके, आप व्हेन डिड एक्चुअली यू स्टार्टेड द बिजनेस? सॉरी, आपने बिजनेस एक्चुअली कब शुरू किया, कब सोचा कि नहीं मुझे बिजनेस ही करना है, और कब शुरू किया आपने एक्चुअली, व्हेन इट केम यस, टू रियलिटी? इट वाज, यू नो, द टाइम व्हेन द idea has come in the mind. हम्म. I was with one of my partner ओके. in the room. हाँ. Actually, we used to staying together हाँ. at the same site. ओके. So in the middle of I can say in the middle of night, around 1 o'clock, ओके. ओके. my friend just thoughted that, or thoughted that why not we start a startup, हाँ. and suddenly he got the name also. I don't want to disclose the Yeah, name. definitely. I won't ask for you. I won't ask for it. Okay. Yes, Okay. yes, and the listen. Yes. Let me complete first. Yes. It was comes in the mind around October October of 2019. Okay. Okay. Pre-COVID. Okay. Yes, yes, we had Okay. just thought that in Huh. October 19 Yes. that we will start our setup. Hmm. Hmm. Then I and my friend started working on it. Okay. Hmm. फिर हम लोग उस पे सोचते गए, काम करते गए, बहुत कुछ हम लोगों ने बहुत कुछ रेडी किया, Hmm. सब कुछ कंपनी प्रोफाइल वगैरह सब कुछ रेडी किया, और उसको एक्चुअली ग्राउंड पे 1 जुलाई को लाया। 1st July, I guess, 2020, means 2020. just after the COVID lockdown ended, and you entered into the actually business model. You were in the field. Yes, Okay. because Okay. Yes. Yes. Please continue. बिकॉज मेरा और मेरे पार्टनर का एक थॉट था, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल। बिकॉज लॉकडाउन के बाद बहुत सारी ऐसी फैमिली थी, वर्कर्स थी, जो दिल्ली मुंबई से अपने घर को गई थी रिटर्न, Hmm. और पूरे लॉकडाउन में 4 महीना उनके पास कोई जॉब नहीं था, Hmm. कुछ भी नहीं था। Hmm. So why not we should start at the peak of as the lockdown has ended, Hmm. and we will also get the labors, Hmm. and if we will offer him job, he can get the money from me, and he can feed their family in the Okay. lockdown period. Okay. ये हमारा कहीं ना कहीं तो था। Okay. So means basically you were more on a mission rather than just going on a business model. Okay. But still there is one question जो मेरे दिल में कहीं ना कहीं अभी उठ रहा है इस बात को लेके, वो ये कि जस्ट कोविड लॉकडाउन अभी खत्म हुआ है, 2-2.5-3 महीने का लॉकडाउन अभी खत्म हुआ है। कोविड-19 लगभग अपने पीक को हिट कर रहा है अभी, क्योंकि एज द डे प्रोग्रेसिंग वो और बढ़ रहा है, वो मास में जा रहा है। तो एक ऐसा बिजनेस मॉडल को इम्प्लीमेंट करना जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है, आपको दूर दूर से लोग कैरी आउट करके लेके आने, क्योंकि आई गेस अगर आप कंस्ट्रक्शन में और वर्कर्स लाने हैं तो वो मोस्टली या तो आपका ईस्टर्न यूपी से आएंगे, या तो बिहार से आएंगे, या झारखंड से आएंगे, करेक्ट?
वहाँ से लेबर यस वहाँ से लेबर अगर आप किसी भी बड़े शहर में जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई या किसी भी बड़े शहर में जा रहे हैं, तो मिनिमम कहीं भी जाना है तो 15 से 20 आवर्स का जर्नी है। और देर विल बी अ लॉट ऑफ कनेक्शन, ओनली सोर्स बाय विच द लेबर कैन ट्रैवल इज ट्रेन से। और ट्रेन से जाएगा तो कोविड हो सकता है, और अगर एक भी आपके बुलाए आदमी को कोविड होता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक ऐसे मोमेंट पे जब कोविड अपने पीक को हिट कर रहा है, जहां लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, आप एक बिजनेस मॉडल आपने इंप्लीमेंट किया जहां सिर्फ आप लोगों को लेके आए। ऐसा क्यों, ऐसा ख्याल क्यों आया, उसी दौरान क्यों आया कि नहीं हमको मैन पावर अभी शायद डिप्लॉय करनी चाहिए? यस मैंने अभी आपको बताया। हाँ। एक्चुअली वो उस समय आया था बिकॉज जब लोगों के पास वैसी कुछ जॉब नहीं है, हम्म। उनकी फैमिलीज है, हम्म। देन अपने लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ बहुत पहले भी काम किया है, हम्म। देन क्यों ना अभी बिजनेस शुरू किया जाए और उन लोगों को काम दिया जाए जो लोग जिनके पास काम नहीं है, हम्म। जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। हम्म। अगर उनको हम अभी काम देते हैं तो वो हमारे कहीं ना कहीं फिक्स एसेट बनेंगे। ओके। ऑब्वियसली दैट इज द बिजनेस आइडिया। ओके। एंड उनको जो उनके काम का जो भी वेतन मिलेगा हाँ। वो उसे घर पे भेज सकते हैं। इवन हम्म। दैट टाइम all the companies, most probably the companies were cutting the salaries of their employees या एब्सोल्युटली। that time. And literally मेरे दिमाग में उस समय ऐसा था, बस करना है और बहुत सारे लोगों के लिए करना है, और ओके। कुछ नहीं था, बहुत सारे लोगों के लिए करना है ओके। और ऐसा करना है कि बहुत सब अच्छा हो, बढ़िया हो। और उस समय कोई डर नहीं था कोविड का एक्चुअली। हाँ। यस हम सभी ने प्रोटोकॉल फॉलो किया, जो लोग बिहार से आए, यूपी से आए, वट एवर जहाँ से भी आए, हम्म। उन्हें 3 दिन 7 दिन 7 दिन तक क्वारंटाइन में भी रखा उन लोगों को। हम्म। सबकी टेस्टिंग आने पे सबका मेडिकल हुआ, फिर उन हम्म। लोगों से मिला भी, फिर उन लोगों के साथ काम किया। तो हम लोगों ने कोविड का सारा जितने भी प्रोटोकॉल्स थे सारे फॉलो किए। और कहीं ना कहीं अगर खुद में जुनून होती है हम्म। तो कुछ वैसा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ किसी लेबर को, ना कोविड एब्सोल्युटली। हुई ना कुछ भी हुई। ओके। सो ओके, तो आपने पोस्ट जस्ट आफ्टर पोस्ट कोविड आपने बिजनेस शुरू किया। आपका यू वर ऑन अ वेरी ग्रेट मिशन, एंड ऑफ कोर्स आज आप आज भी शायद उसी मिशन पे होंगे। uh, मेरा एक सवाल है कि आपने जो बिजनेस मॉडल प्लान किया था, क्या वो इट वेंट एज पर प्लान, यस और नो? जो प्लान किया था उस पे कुछ दिनों तक तो चला, ओके। बट कुछ दिनों के बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। ओके, तो क्या लगता है बिक- क्या प्रॉब्लम आई, कैसी किस तरह की प्रॉब्लम आई? और थोड़ा डिटेल में अगर आप बताएं तो हमारे ऑडियंस के लिए अच्छा रहेगा, दे कैन अंडरस्टैंड। यस यस एक्चुअली प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम थी कि स्टार्टिंग में हम सब ने सब कुछ प्लान किया। हमें ऐसे this in this process we will bring our labors and everything, and whatever we can do we will do for that. But in the meantime, actually there was uh, 5 partners in the ओके। initially, okay, ओके। and we had planned that we will every week we will do the meetings, and every week we will do like we will discuss about the problems and we will sort out. But in the meantime, I thought that, and I was surprised that जितने लोगों ने बोला, जितने मेरे पार्टनर्स थे, उसमें से कुछ लोगों को छोड़कर जो कुछ थे उन्होंने बस यही बोला, अरे जो करना है करो यार, मैं बस यहाँ पे हूँ, ठीक हूँ, मैं नहीं आ सकता। ये बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे, बट उन्हें काम करना है। तो मीन कहीं ना शायद कहीं शायद कोऑर्डिनेशन आपको वो नहीं मिला, या आपने जो अपने फ्रेंड्स में जो एक ग्रुप प्लान किया सोचा था वो शायद आपको सपोर्ट नहीं मिला, वैसा करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज देखिए, अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हो तो इट इज, नाउ आई कैन से दैट इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट इंडिविजुअल स्टार्टअप और इंडिविजुअल बिजनेस, दैट वुड बी वेरी 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 बेटर देन इन पार्टनरशिप, ओके। ओके। बिकॉज पार्टनरशिप में क्या होता है, आपको दोनों की थॉट्स को एक पे लाना पड़ेगा और उसके थ्रू जाना पड़ेगा, ओके। ओके, वेदर यू आर एग्री हाँ। और नॉट। हाँ, सही बात है। हम सभी इतनी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी हैं अपने आप में कि हम ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा दूसरा पार्टनर या मेरा दूसरा फ्रेंड, भले वो मेरा कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, वो भी सेम पिच पे है क्या नहीं है, इज ही ऑन द सेम पेज और नॉट? Yes, definitely. Just like
your labor is working on site till the Hmm. midnight, okay? Hmm. And one partner is on just like today. Today, many laborers are working at site, Hmm. and you are at the site, Hmm. okay? Hmm. And and definitely next day you will expect that your partner should be Hmm. available Hmm. next day in Yeah, the night. absolutely. But there was nothing like that. Hmm. पार्टनर्स थे, बस उन्हें कुछ था नहीं, बस ऐसे ही। Okay, but बस means पता नहीं, means मुझे भी means आज means तक means आज they तक were मुझे भी पता नहीं चला। means they were more of just a profit seeking rather than getting actually involved in the Definitely business. Okay. you can say that, except one, Okay. except one, Okay. you can Accept one. So okay. Uh, means from whatever discussion I had with you right now, just right now, so I can understand that your business actually went into a great say. downfall. But you know, Yes. uh, I would like to add some point Okay. in this Yeah. previous Sure. Yeah. Sure. topic. Uh, हम लोगों ने, जो हमारे पार्टनर्स थे, हम लोगों ने सोचा था चलो ठीक है, हम लोग कुछ उनके लिए करेंगे जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम Hmm. है, ओके? बट आपने एक मैंने कहीं पे पढ़ी थी, हिंदी में एक कहावत हाँ. थी, Hmm. कहते हैं, पढ़ा था मैंने कि अगर कहीं पे आवाज होती है ना, हाँ. तो वहां पर भाग के गिदड़ भी आता है, बिल्कुल. बट वो आपको बचाने के लिए नहीं आता है, हाँ. Definitely. अटैक, वो आप पे अटैक करने के लिए आता बिल्कुल. है। तो सेम, यू कैन से दैट द सेम थिंग वाज विथ अस। मीन्स योर हम बिजनेस. लोगों ने जिन के लिए हाँ. अच्छा किया, हाँ. वो लोग तो बस हमारे फाइनेंशियल पार्ट्स दिखे, ओके. चलो इन्होंने हाँ. शुरू किया, इनके पास पैसे हैं, जितना हो सकता है निकाल लो, फिर छोड़ो। तो ओके. इट वाज जस्ट लाइक दैट। Means your business mostly went into a downfall, correct? यस यस। Okay. Okay. So did your partners or your so-called collaboratives or colleagues ने क्या आपको एक्चुअली हेल्प किया, या उनका पर्सपेक्टिव क्या था इस पूरे के पूरे आउटकम की तरफ, या जो भी आप सिनेरियो फेस कर रहे थे, और क्या सिनेरियो एक्चुअली आप फेस कर रहे थे उस दौरान? उस दौरान बस यूं समझ लीजिए, जस्ट आई आई टचेस द डेथ एंड कम बैक एंड नथिंग। यू नाउ यू कैन You can laugh. You're saying this with a laugh, but I think आपने जो बात कही कि मैं मौत को छू के वापस आया, तो ऐसा लगता है जैसे कि इस बात को मजाक में ही कह पाना बहुत बड़ी बात है, बट अगर एक्चुअली में मतलब थोड़ा अगर आप बताएं अपना एक मेंटल स्टेट क्या रहा उस दौरान, या आपको किसने हेल्प किया, या आपको डाउनफॉल, क्या लोएस्ट डाउनफॉल आपने देखा? actually I don't want to remember that thing, ओके. but no, but definitely I will share at this platform, because most of the young boys हम्म. who wants to start their startup, and हम्म. if they get failure, then हाँ. what he will do? Definitely they will have no any plan, and ड्यू टू दिस बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो फेलियर होने के बाद लोग सुसाइडल अटेम्प्ट पे जाते हैं और बहुत कुछ हम्म. करते हैं। देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, ऑल द सिनेरियो, ऑल द फॉक्स, हम्म. even my partners, हम्म. yeah, you can say that if you will get one partner हम्म. who is standing, हम्म. that is enough for that. Okay. That was the enough for me, and I was enough for my partner. means One. means you have some saving grace among all these disasters. Yes, Okay. and definitely he Uh-huh. has supported me, and I had supported. You won't believe that we both was on the call like 5 hours, 6 hours, 8 hours, and we both was crying in the night. Oh, what we have done, what we are facing. Of course, Let's आज. see, we will do something like that. We will do something like that, like suicidal. But when I was started like talking about this, my friend was starting, no, it's not a good. What you are rubbish you are talking about? And when he was about to start, then I started. What about you? What the rubbish you are talking about it? Definitely, Then definitely. we had just supported each other, my one partner and I Mm. also got supported. And in the main scenario, in this scenario,
लो, हम्म व्हाट वाज द बेस्ट, हमारी दोनों की फैमिली हम्म बहुत सपोर्ट, बहुत, और फैमिली। मैं कह सकता हूँ फैमिली से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है, हाँ, चाहे ये कुछ बात भी। कहीं ना कहीं हम सभी देर से ही सही बट महसूस ज़रूर करते हैं जितने कि भी नो मैटर व्हाट यू डू, आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ रहेगी। दे आर द ओनली वन हु एक्चुअली लव्स यू एंड हु विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। दैट आई हैव आल्सो लर्न द हार्ड वे। और, और मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट फैमिली से जो सपोर्ट मिला, बिल्कुल बहुत अच्छा। एंड आई गॉट वन आल्सो सपोर्ट, हम्म जिनसे मेरी बहुत अच्छी बातें भी होती है, हम्म अभी भी होती है, हम्म बट आई कैन नॉट ah डिस्क्लोज इट। डेफिनेटली बट दैट्स ऑफ कोर्स we हम सबके पास कोई ना इन कोई एक ऐसा दोस्त होता है। कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है जिनके साथ आप हर चीज शेयर करो, और कहीं ना कहीं वो आपको मेंटल सपोर्ट करे, बिकॉज या इन दिस सिचुएशन मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली यू विल नीड ओनली मेंटल सपोर्ट, नथिंग एल्स। डेफिनेटली बिकॉज डेफिनेटली वो कहते हैं ना, एक कहावत है, खाली जेब भूखी पेट, सब सिखा देती और है, समथिंग लाइक दैट। सब सिखा देती है यस, इंसान को। सब कुछ दुनिया के सारे राज सिखा देती दुनिया का सच इसी एक लाइन में, दुनिया का पूरा जिस्ट इस एक सेंटेंस में है। खैर एनी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आ, इस दौरान तो या आपकी आज तक की लाइफ का व्हाट वाज योर लोएस्ट पॉइंट, जो आपको लगता है कि यार ये रॉक बॉटम हिट कर लिया है, अब इससे नीचे तो नहीं जा सकता, ये जीरो से भी नीचे जा चुका हूं मैं, अब इससे नीचे तो नहीं जा सकता, अब यहाँ से सिर्फ उठना है। और ऐसा क्या लगा, क्या रहा आपके लिए कि मैं हाँ अब मैं रॉक बॉटम हिट कर लिया, यहाँ से बाउंस होकर सिर्फ ऊपर जा सकता हूँ, मेरे पास और कोई स्कोप ही नहीं है। है। या दैट वाज द पॉइंट इन माय हम्म लाइफ, after all the failures. हम्म Okay, I was running out of financial support and everything. हम्म Okay, so you won't believe, I had no enough money to हम्म travel हम्म anywhere or हम्म go anywhere, or you can go outside the home. Okay, so but at that point, हम्म I thought that no, now it's enough. Now it's enough. Now I have to come back in my position. What was I in the before starting the चेक योर कैमरा, uh, थोड़ा थोड़ा कैमरा startup? कैमरा थोड़ा दूर रखिए। हाँ हाँ, यस Yes. यस यस। What is that? या तो मैंने सोचा चलो अब बहुत हो गया, अब हम्म बहुत फाइनेंशियल सिचुएशन फेस किए, बहुत कुछ हो गया। तो फिर सोचा नहीं, अब ऋषिकेश, अब तुम्हें वो करना होगा जो तुम पहले थे, वैसा कुछ अचीव करना पड़ेगा। एंड द सेम डे हम्म I just talked with my senior persons हम्म in my, and then the same day, within 4 to 5 days, I got back my job with the, you can say like uh, around 80% increment. हम्म Okay, actually I had learned many things in the life. सो Okay, इट्स मोर लाइक इट्स मोर ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मैं उस समय अपने लाइफ करियर के टॉप पे था, हाँ और बहुत सारे एक्सपीरियंस थे मुझे फिर इन 5 महीने में, जो मैंने ओके, एक्सपीरियंस गेन मतलब किया। ये 5 महीने में सब कुछ हो गया आपका, सब शुरू कुछ हो गया होके पाँच लोएस्ट हिट महीने करके और आप रॉक बॉटम हिट कर चुके थे। यस, ओके। और अब मैं अगेन मैं उस पोजीशन पे आ गया हूँ। हाँ आई कैन सर्वाइव लाइक ऑन, ओके। नो प्रॉब्लम। हाँ I can say I want to say something about this. हम्म Uh, कभी ना होप नहीं छोड़नी चाहिए। होप तो ठीक है, कभी जो आपके अंदर आप क्या हो ना, हम्म व्हाट आर यू, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एनी मैन। ओके, हम्म अगर आप कुछ शुरू करने जा रहे हैं, हाँ और कुछ हम्म भी शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई हम्म शुरू कर रहे हैं, हम्म और सडनली आपको लग रहा है आप नहीं पढ़ रहे हैं, बट यू हैव टू कीप सेइंग टू योरसेल्फ दैट आपके अंदर बहुत कुछ है, आप कर सकते हो। सी, हम्म in this world nobody is same as well as Einstein or anyone. Okay, हम्म every person has
every person has their own specialties. Like कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, हम्म कोई बहुत अच्छा टेनिस खेलते हैं, कोई हम्म बहुत अच्छा इंजीनियर है, कोई बहुत अच्छा मैनेजमेंट करता है, हम्म कोई बहुत अच्छा ड्राइविंग करता है। हम्म तो सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परफेक्शन है। लो, उन लोगों को उनकी अपनी परफेक्शन जाननी पड़ेगी, हम्म पहचाननी पड़ेगी। उसके हम्म लिए उनको उस फील्ड में काम करना पड़ेगा जिसमें उनको मजा आता है। ओके ओके, मैंने आपको हम्म बताया ना, मैंने जब जॉब शुरुआत की थी अपनी, हम्म तो मुझे मजा आने लगा साइट पे। हम्म लाइक इन द कंक्रीट फील्ड, हम्म कंक्रीट, द टफेस्ट पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज कंक्रीट। कॉन्क्रीट डेफिनेटली अगर यस आपने हम्म कंक्रीट नहीं किया है, कंक्रीट नहीं किया है, तो आपका काम पूरा अधूरा है। ओके, हम्म एंड कंक्रीट ऐसा फॉर्मेशन है जो ऑन द साइट बनाते हैं और वहीं पर उसकी पोडिंग होती है, और फिर आफ्टर 7 डेज, इसमें कितना रिस्क होता है, यू कैन अंडरस्टैंड, यू आर आल्सो सिविल हाँ इंजीनियर, यू कैन अंडरस्टैंड। डेफिनेटली आई कैन हम अंडरस्टैंड कि पूरा आपने एक बिल्डिंग बना स्ट्रक्चर, दिया, आपने एक यस, टॉल स्ट्रक्चर बना दिया, उसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम है तो बिल्डिंग कोलैप्स कर सकता है, और वो एक बिल्डिंग कोलैप्स होगा तो देयर आर और डायरेक्ट लाइव्स इन्वॉल्व्ड। और you can feel that how much risk we have या डेफिनेटली in insurance. डेफिनेटली डेफिनेटली See, we have made something, okay, हम्म and I don't know what will be its result. हम्म Is it good or not? And I हम्म have fought final. हम्म मैंने उसको कंक्रीट कर दिया, हम्म किसी भी स्ट्रक्चर को कंक्रीट कर यस दिया। आफ्टर 7 days and 28 days, I will get the result. हम्म In between the 28 days, if I have casted the raft, in between 28 days, I will be on the second floor. हम्म If सारा there are cubes सारा and सारा temples सारा and गेम failed, then सा, सारा गेम मेरे कॉन्फिडेंस और फेथ का ही तो है। बिल्कुल। सो ओके डेफिनेटली, और वो चीजें मैंने गेन की है, हम्म स्टार्टिंग से गेन की, हम्म और मेरे अंदर है वो चीज़। तो मैं आपको पहले ही बताया, अगर मैंने सिविल इंजीनियरिंग, मेरा कुछ था नहीं, हम्म मैंने कुछ सोचा भी नहीं, बट मैंने जब मुझे मिला, हम्म तो मैंने उसमें इतना अपना सब कुछ डाल दिया, सब कुछ डाला मैंने। और आज ओके इफ आई कहीं ना कहीं हाँ अच्छा है। हाँ इफ आई टेक दिस इफ आई जस्ट ट्राई टू कंक्लूड ऑफ व्हाट वी जस्ट डिस्कस इन लास्ट फ्यू मिनट्स, तो हम एक बार जरूर बोलेंगे कि अगर मतलब एक ही है कि अगर भगवान एक रास्ता बंद कर देता है ना, तो दूसरा जरूर कहीं ना कहीं खोल देता है। ठीक है, इसी बात को थोड़ा आगे बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। मेरा अगला सवाल है आपसे कि इतना सारा 5 महीने में आपने एक अच्छा खासा मेंटल ट्रॉमा जैसा फेस किया, अगर जैसे आपने मुझे कहा कि आप सुसाइड लेवल तक वापस आए हैं, तो अगर आप तो आपने काफ़ी ट्रॉमा फेस किया, तो क्या लगता है आपको किसने मदद किया, या क्या रहा ऐसा कि आप अपने वो सारे फेलियर्स को, वो सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने की हिम्मत जुटा पाए और बाहर आ पाए उससे? ऑब्वियसली, जो मेरा पार्टनर था, एक हाँ पार्टनर जिसकी मैं बात बता रहा हाँ था, हाँ उसने बहुत हेल्प की। एक्चुअली हम दोनों ने एक दूसरे की बहुत हेल्प की, बहुत हेल्प की। हम्म और दैट वाज द वन थिंग दैट, let it be, we have started together, and at least out of five, हम्म one for each other is standing with us. Let it be this any situation, we are standing with each other. ओके You won't believe, हम्म we have not celebrated Durga Puja, हम्म we had not celebrated Diwali, we had हम्म not celebrated Chhat, didn't हम्म celebrated anything, ओके anything. and I guess you come from And obviously, as you and told me obviously the hmm, family support, जिन्होंने ऑब्वियसली, उनकी फैमिली सपोर्ट इतनी बढ़िया थी, सब दोनों की। और हर किसी का अपना एक फ्रेंड होता है, और इतनी बढ़िया सपोर्ट थी, मेंटल सपोर्ट आप कह सकते हो उसको, जो सीरियसली but उस yeah स्टेज से बचा के लाने में मेंटल सपोर्ट का but yeah बहुत बड़ा योगदान। not not everyone is lucky to have a friend like this or a best friend like this. Anyhow, um, okay, so I have another question for you is what was your takeaway from your field dream? आपने क्या आपको आपके फील्ड ड्रीम से क्या सीखने मिला? फेल ड्रीम से एक चीज तो सीखने को मिला है, आप ना कभी किसी पे, हाँ इवन कोई भी हो, हम्म आप कभी किसी पे ना ब्लाइंड फेथ नहीं करनी चाहिए। इवन आपका पास्ट में वो बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हम्म रहा, ओके, हम्म ब्लाइंड फेथ आप किसी पे मत करो। अगर आप कुछ भी करने जा रहे हो, हम्म कीप इट सीक्रेट विथ यू, कीप इट सीक्रेट विथ यू ओनली। हम्म अगर आप सबको बताओगे ना, वो चीजें कभी पूरी नहीं होंगी।
आप अपने तक उसे सीमित रखो, और जब करके दिखाओ Hmm. तब को पता चले, दुनिया को पता चले आपने क्या किया है। बट ऑब्वियसली ये उस समय तक मैंने नहीं सीखा था। ओके। और Hmm. हम लोगों ने सब जगह यही बोला, नाउ वी आर द एमडी, वी आर द ऑनर ऑफ Hmm. आवर Hmm. कंस्ट्रक्शन Like कंपनी, more of more ऐसा it's more of there is a phrase in cricket, let your bat do the talking rather than speaking about it. You should do your play or whatever you're doing your venture, let be the talking. यस। Mm. Okay, so with this, I guess you have enough experience, you have attained enough experience over the period of course, over this period of time. So what are the some a few suggestions or advices to the new to the persons who are looking after to start their own startup among in between amidst a full-fledged blossoming career of their own? So what do you suggest यस, them? क्या suggest करेंगे आप उन्हें? यस, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट देम, इफ एनीवन वांट्स टू स्टार्ट देयर स्टार्टअप, Hmm. ओके, he has to be choose that field Hmm. in which he is a specialist. Okay. Okay. if if अगर वो स्पेशलिस्ट नहीं है, Hmm. then he has to be learned, Okay. he has to be learned first, Hmm. otherwise he will get there. Okay. ओके, सबसे पहली बात, उसे उस चीज के बारे में सीखनी होगी, पता करना होगा। ओके, एंड द सेकेंड थिंग, Hmm. सिविल कंस्ट्रक्शन, like any food item, Hmm. anything, Hmm. these are the common, Hmm. these are the common things। Hmm. आपको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जो लोगों के डेली यूजेज में आता हो, Hmm. डेली यूजेज। इसका एक फायदा ये होगा कि उस चीज की ना कभी यू कैन से दैट रिसेशन नहीं आती है, कभी Hmm. कभी ऐसा नहीं होगा कि क्राइसिस आएगी, बिकॉज Hmm. एवरी टाइम जो डेली यूजेज में है लोग आएंगे ही आपके Hmm. पास, आपके Hmm. कस्टमर्स होंगे, या फिर Yeah, आप जाओगे absolutely, वहां पे। absolutely. Hmm. तो सेकेंड थिंग, द थर्ड थिंग, कॉन्फिडेंस। Hmm. You never has to be lose your confidence. Either you are fail, let it be fail, 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 fail. Hmm. Don't count fail as a failure. Count like a you have learned something from this. You have learned something. You have learned something. One step, one step, Hmm. one step. You are fail. Hmm. You have learned some one step. You are fail. You have learned some step. Hmm. You are fail. You have learned some steps. So just make a steps and reach at your सक्सेसफुल goal। सक्सेसफुल होने की सीढ़ियाँ कई बार अनसक्सेसफुल होके बनाई जाती हैं, करेक्ट? ओके। और डेफिनेटली आपको पता है, मैं बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस भी देखता था इस बीच में, हम्म। सो दैट कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो। और इस बीच मैंने एक है, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, क्या नाम है, संदीप माहेश्वरी। ओके। उनकी द मुझे ग्रेट संदीप माहेश्वरी। एक एक कंप्लीट सेंटेंस मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, हम्म। जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। सी, यू आर ऑन अ बैटिंग लाइनअप, ओके, हम्म। आप बैटिंग लाइनअप पे हो, आपके हाथ में बैट है, पीछे विकेट है, हम्म। पीछे विकेट कीपर है, सामने से बॉल फेंकी जा रही है। हम्म। फर्स्ट बॉल आया, आपने सोचा मार दूंगा घुमा के छक्का, हम्म। आप क्लीन बोल्ड हो गए। हम्म। ओके, ठीक है। वन बॉल क्लीन बोल्ड। हम्म। दूसरा बॉल आया, आपने सोचा फिर मार दूंगा, मारा, बहुत ही शॉर्ट शॉट था और वो कैच आउट हो गया, हम्म। फिर से आउट, हम्म। 2 बॉल वेस्ट हो गए। तीसरा बॉल आया, फिर आपने सोचा अब की बार तो कहीं ना कहीं मार ही दूंगा, बहुत जोर से हिट करूंगा, हम्म। आप फिर से बोल्ड, 3 बॉल 3 बॉल। हम्म। चौथी बार, पांचवी बार आप बोल्ड हो गए। हम्म। देन आपको रियलाइज करना होगा, पहली बॉल कहाँ गिरी, दूसरी बॉल कहाँ गिरी, तीसरी बॉल कहाँ कैसे आई, हम्म। चौथी बॉल कैसे आई, पांचवी बॉल कैसे आई, एंड द लास्ट, लेट इट बी कम। प्ले ऑन द आप मेरिट, उसको प्ले ऑन देखो, द मेरिट। बॉल बॉल को देखो, बॉल कहाँ पर आकर गिरी, हम्म। किस तरह से ऊपर आई, और दे बल्ला घुमा के आप सीधा बाउंड्री के बाहर मारो, 6। इट्स लाइक प्ले ऑन द क्या होगा, प्ले ऑन इट्स मेरिट, है ना? क्या होगा, डेफिनेटली। आपकी 6 बॉल 6 रन मिल गए। So let it be, wait, and then just take the opportunity and hit it. हम्म।
Okay. definitely you will be on such. ओके, डेफिनेटली, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। ओके, तो इन द एंड मैं कुछ कहना चाहता हूँ, फिर एक उसके बाद एक सवाल है आपसे। आपने मुझे कहा कि आपके पार्टनर से और वट एवर इट वॉज, आई कैन नॉट गो इन डीप इन टू दिस, बट एक मशहूर मशहूर शायर का एक कलाम है, ज़रूर यहाँ पे मुझे याद आता है बहुत अच्छे से कि कुछ नाकामियाँ मुझ में रहने दीजिए जनाब, कुछ नाकामियाँ मुझ में रहने दीजिए जनाब, मुझे खुदा नहीं सिकंदर बनना है। खैर, देखिए, हो सकता है सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बिल्कुल हम सभी बिल्कुल। किसी ना किसी की कहानी में तो विलन होते हैं। तो इन द एंड, अगर आप अपने उन पार्टनर्स को कुछ एक पर्टिकुलर मैसेज देना चाहते हैं जो शायद आपके हिसाब से आपके बुरे वक्त में आपको ऐसी जगह छोड़ के भाग गए जहां शायद आप कुछ भी कर सकते थे, आप बुरे से बुरी स्टेज पे जा सकते थे, जैसा आपने मुझे बताया अभी, तो क्या आप उनके लिए कुछ पर्टिकुलर छोटा सा शॉर्ट में एक ब्रीफ मैसेज देना चाहते हैं? बस एनीथिंग, इट उनके कुड बी लिए एक एनीथिंग। मैसेज, हाँ। उनके उनके लिए एक मैसेज बस यही देना चाहूंगा, जहाँ भी रहे अच्छे से रहे, बट किसी के साथ कभी ऐसा ना करे। ये लोगों की एक होती है, ठीक है, बिजनेस है, पार्टनरशिप है, सब कुछ है, बट एक ह्यूमैनिटी भी एक बात होती है। हम्म। तो ऐसा कभी किसी के साथ ना करे, तो दैट कोई मेरी जगह में भी कोई और भी हो सकता है। हम्म। तो मे भी उन्हें और अच्छा करना चाहिए, और अच्छे से रहे वो लोग, अच्छे से काम करे, अपने करियर को आगे बढ़ाए। ऑब्वियसली किसी के लिए कोई रुकता नहीं है, हम्म। और डेफिनेटली, अपने डेफिनेटली। करियर को आगे बूस्टअप करना चाहिए। या, शायद ऑफ उन्हें कोर्स। लग रहा हो हम लोग गलत है, हम नहीं कर पा रहे हैं ये कर, ऑब्वियसली देन अगर नहीं कर रहे उन्हें आके कहना चाहिए था, ओके नो प्रॉब्लम, लेट इट बी, वी ओके। हैव लर्न मेनी थिंग्स। So Rishi, it was pleasure talking to you. I really acknowledge and appreciate the fact that you have really want to thank you to be here on my show, being first guest of my show. It's really honoring for me to have you on here. But uh, I would like to say something over the interview we had. If I just like to summarize now, uh, I can say one thing. That is actually the tagline of my show. Also, it's a famous Persian or Afghani quote that says, "Time change, things end, people change, but zindagi mixara." All right, guys, that's all from my side on this episode of Zindagi Mixara with Deepak Mishra. We'll be back soon, and till then, take care and wait for our next show. Thank you very much, and don't forget to hit the like and subscribe button.